Hi guys, welcome to my channel, and today we are going to start off with chapter 1 of biology class 11. And before we start, let me explain you what all content is there in class 11 biology book. So we have a total of 5 units, from which the first unit is diversity in the living world, and we're going to start off with chapter 1, the living world, which is a part of unit 1. So let us start without any further ado. Okay, so, chapter 1, the living world. How wonderful is the living world! The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. So hot springs are basically when there is hot water. जब जैसे ज़मीन है आपकी, उसके नीचे जब पानी होता है वो बहुत गर्म हो जाता है तो वो ज़मीन के ऊपर आने की कोशिश करता है. So that area, that is what we called hot springs. Okay, so the beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. So basically this is the introduction about what we are going to study, or like what all things are there that give us an idea of what life is indeed. So first of all, I'm going to tell you the meaning of ecological. Ecological is nothing, it's like the food, habitat, living, all these things which are there in ecological. And ecological conflicts is obviously something that क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, जो इन चीज़ों की वजह से आपकी लड़ाइयाँ या जो लड़ाई झगड़े होते हैं, दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली इज़ इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गई या आपका जो मॉलिकुलर ट्रैफिक होता है इवन इनसाइड इट सेल, ये तो हम आगे सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं दैट मेक्स अस रिफ्लेक्ट, वो हमारे को सोचने पे मजबूर करता है कि लाइफ एग्जैक्टली क्या है. सो दिस क्वेश्चन हैज़ टू implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living. And the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. सो बेसिकली इन चीज़ों की वजह से जो हमारे को एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, तो उसके लिए हमारे पास दो क्वेश्चंस विद इन दैट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ विच इज़ अ टेक्निकल वन एंड विच सीक्स आंसर, मतलब एक तरह से एक टॉपिक को एक्सप्लोर करता है, वो आपका आता है सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज टू नॉन लिविंग. तो टेक्निकल वन का मतलब ये है कि जिसमें आप नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ों को कंपेयर करके उसमें से आइडिया निकालने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट इज़ लिविंग. एंड द सेकंड वन इज़ फिलोसफिकल वन, जो आप अपना सोच के कि हाँ कि उसमें क्या पर्पस है, क्या चीज़ है लाइफ में. सो हम वी वोंट गेट इनटू ऑल दैट, हम ऑब्वियसली फर्स्ट वन में जाएंगे बिकॉज वी आर साइंटिस्ट, राइट? So as scientists we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living, and when we are trying to reflect on what is living, we are gonna use the technical question, which is the first one, when we are opposing living and non-living things together and we are comparing them to understand what is living. So let us start with 1.1, diversity in the living world. If you look around you, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds or pets or other animals and plants. So अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो we have a lot of variety, we have a large variety of living organisms, whether they are plants, हमारे जो पेट्स होते हैं, कोई अदर एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं. सो दीज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. ये कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज़.
And if you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. देखो, if we are saying कि हम एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, उसमें हम कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को देख पाएंगे, लेकिन अगर हम उसी एरिया को और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, उसको हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसमें और ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पा सकते हैं. लाइक इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू कैन से कि आप जब एरिया बढ़ा रहे हो तो द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू आर गोना सी इज़ मच हायर. Okay, so obviously if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. सो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि अगर हम एक रेजिडेंशियल एरिया में हैं, कोई रेजिडेंशियल एरिया में है, तो हम उसमें कम वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, बहुत ही एक कम. हाँ, बिकॉज आप एक लिविंग लाइक रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, तो आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बर्ड्स देख सकते हैं, स्क्वारल्स देख सकते हैं, पिजन्स, पेट एनिमल्स, अब अपना ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स. लेकिन अगर हम सेम चीज़ जाके अपना फॉरेस्ट में ढूंढते हैं, तो हम वहाँ पे बहुत ही लार्ज वैरायटी और स्पीशीज़ ढूंढ सकते हैं. लाइक बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्राणी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एनिमल भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, आपको बहुत सारी अलग टाइप्स की बर्ड्स दिख जाएंगी. सो है ना. एंड और अगर हम जो ये अलग अलग तरह के प्राणियों को, जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट दे आर द वंस हु रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़. And the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. The number of species that are known, जो अभी तक हमारे को पता है कि कितनी species हैं, कौन सी species हैं, जो described है, they are between the range of 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity or the number and types of organisms present on Earth. So what biodiversity is exactly? It is the different types of species, the number of species, जो अलग अलग टाइप के organisms हैं, अलग अलग टाइप की species हैं जो present हैं, that is what is called biodiversity. So we should remember here that we explore new areas and even cold ones. New organisms are continuously being identified. सो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम जो हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, मतलब बेसिकली वो एक्सप्लोर कर रहे हैं नए नए जगहों को. नई नई जगहों के अगर एक्सप्लोर करेंगे तो उनको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे. चाहे अगर वो कोल्ड एरिया में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. ऑब्वियसली अगर आप बोलते हो कोई कोल्ड हैबिटेट में एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो वो गर्म हैबिटेट में ऑब्वियसली नहीं रह सकता, क्योंकि उसको अडाप्ट करने में दिक्कत आ सकती है. सो सिमिलरली, ठीक है. एंड एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. ऑब्वियसली जैसे आप अपने सोसाइटी में या आप कहीं पे भी जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अगर आपके कोई डॉग्स हैं तो आप उनको अलग अलग नाम देते हो. ऑब्वियसली कि आप किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी डॉग का नाम कुछ रख दिया, आप उनको आइडेंटिफाई कर पाते हो उन नामों से, है ना. सो दीज लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री. These local names would vary from place to place even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. अब देखो, अगर आपकी सोसाइटी में बहुत सारे डॉग्स हैं, आपके एरिया में बहुत सारे डॉग्स हैं, तो अगर आप उनके अलग अलग नाम रख रहे हो, है तो वो डॉग्स ही, राइट, रहेंगे तो वो डॉग्स ही, आप चाहे उनके नाम अलग अलग रख दो. लेकिन अगर आप यही नाम आप उनको डॉग्स को बुलाते हो, अगर कोई और एरिया में जाओगे तो उसी टाइप के कोई और डॉग्स होंगे तो उनके नाम अलग होंगे, कोई और एरिया में जाओगे तो कोई अलग नाम होंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कौन कौन है, कौन क्या है, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो इसीलिए इसके लिए
हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज़ किया कि हम इस नाम से एक स्पीशी को बुलाएंगे, या मतलब उसको हम एक कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम अलग अलग नाम रख देंगे तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड वी कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। So hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. So अभी जैसे हमने बात करी है कि अगर हम अलग अलग नाम रखेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी पहचानने के लिए कि कौन क्या स्पीशीज़ है, कौन सा क्या ऑर्गेनिज्म है. सो इसी वजह से we need to standardize the naming of living organisms, that a particular organism is known by the same name all over the world. अगर एक ही नाम से आप अलग एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से पहचान मतलब एक अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलोगे तो दैट विल बिकम डिफ़िकल्ट. बट अगर आप एक ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्डाइज नाम रख दोगे, अगर स्टैंडर्डाइज नाम रख दोगे, सो दैट विल हेल्प, है ना. सो दैट विल बी ईजियर फॉर पीपल टू रिकग्नाइज दैट organism. So this process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. So basically जो naming की जाती है that is what we call nomenclature. And जब हम नामकरण कर देते हैं, जब हम उसकी नेमिंग कर देते हैं, तभी हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर पाएंगे करेक्टली, उसके बारे में और चीज़ें बता पाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. सो जो हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने अपनी स्टडी को ईजी बनाने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हैं, दे हैव एस्टैब्लिश्ड एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन. उन्होंने कुछ तरीके निकाले हैं जिससे आप वो डिसाइड करते हैं या असाइन करते हैं कि कौन सा साइंटिफिक नेम दिया जाए किस ऑर्गेनिज्म को. सो दे हैव असाइंड अ स्पेसिफिक नेम, a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. ये जो biologists हैं over the world, वो सबके लिए acceptable है, वो सब उस organism को उसी नाम से जान पाएंगे, ठीक है. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). So जो आपके प्लांट्स हैं उनके लिए जो आपको साइंटिफिक नेम होते हैं वो रखने के लिए एक उस पर एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरियाज हैं जो प्रोवाइड करे जाते हैं बाय ICBN. इसकी फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर मतलब बॉटनी का मतलब ही प्लांट्स होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग होता है. सो इट इज़ लाइक प्लांट्स की नेमिंग के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो दैट इज़ गिवन, लाइक द प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय ICBN. ओके, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. ये जो जब ये हो रहा है तो आप एक ही ऑर्गेनिज्म के या अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक नाम नहीं रख सकते. तो जो ICBN है वो नहीं, जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो ईच ऑर्गेनिज्म है उसके पास ओनली वन नेम है जिससे आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म. सेम चीज़ है कि वो लोग ये ध्यान देते हैं कि एक ही नाम 2 या 3 या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का ना हो, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम हो. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components, a generic name and specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. सो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूनिवर्सली एक तरीका फॉलो करते हैं टू गिव साइंटिफिक नेम्स.
तो अगर आप कभी भी नोटिस करोगे तो एक ऑर्गेनिज्म जिसकी भी हम बात करें उसके साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होते हैं. लाइक जो पहला पार्ट होगा दैट विल बी द जेनेरिक नेम, एंड जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट. और जब ये दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं, जब साइंटिफिक नेम क्रिएट होता है, दैट इज़ नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनस. ओके, सो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनस. ओके, एंड इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. Okay, this naming system using a two-word format was found convenient. जैसे ये जो तरीका था ये बहुत आसान माना गया नेमिंग करने के लिए. ठीक है, let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. So जो हम पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं that is Mangifera indica, that is mango. जो मैंगो होता है उसका ही साइंटिफिक नेम है Mangifera indica. So let us see how it is a binomial name. In this name Mangifera represents the genus. जो generic आपके देखो यहाँ पे लिखा है, जो generic name है, generic name, this is what shows us the genus. ठीक है, and here in mango जो Mangifera indica है उसमें से Mangifera is representing the genus, and जो indica है that is gonna show you the specific epithet. स्पेसिफिक एपिथेट आपका उसकी स्पीशीज़ बताता है, जो कौन सी स्पीशीज़ से वो बिलोंग करता है. मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस वाइल इंडिका इज़ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ और स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एज फॉलोज. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. देखो, आप जब भी देखोगे कोई भी साइंटिफिक नेम लिखा होगा तो दैट इज़ सपोज टू बी रिटन इन लैटिन. ठीक है, और अगर आपका लैटिन, क्योंकि वो लैटिन तो आपकी ऑब्वियसली सिर्फ टाइपिंग में ही निकल पाएगी, सो जब आप कहीं पे भी कोई साइंटिफिक नेम हैंड रिटन में लिख रहे हो तो आपको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग. जो जीनस है और जो स्पीशीज़ हैं उन दोनों को अलग से अंडरलाइन करना है. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. सेकेंड, the first word in a biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. जो पहला पार्ट है वो आपका जीनस है, जो जैसे मैंजीफेरा है वो आपका जीनस है, जो फर्स्ट पार्ट है वो जीनस है, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द स्पीशीज़. जो आपका इंडिका है इन मैंगो का एग्जांपल, दैट इज़ स्पीशीज़. थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ मेंशन हो गई है, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. Fourth, the first word denoting the genus starts with a capital letter while a specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. So चौथा पॉइंट ये बोलता है कि आप जब मैंजीफेरा इंडिका लिख रहे हो तो उसमें जो आपका पहला वर्ड होता है, जो जीनस होता है, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा. जैसे मैंजीफेरा में एम है वो कैपिटल है, लेकिन जो आपकी स्पीशीज़ होती हैं उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा छोटा ही रहेगा. जो आपका स्पीशी का नाम होता है वो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट छोटा ही रहेगा. इंडिका में आई छोटा ही रहेगा, और जब आप लिख रहे हो मैंजीफेरा इंडिका आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे अलग अलग. ठीक है, सो बाकी का पार्ट वी आर गोना कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर.